Namaskar, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan. It is my new playlist related to marketing management. In this video, I am going to discuss about new product development. It is very common phenomena and known to all. सब लोग जानते हैं, बड़ा ही साधारण है. But it is very important topic for your examination point of view because it will be asked in the examination as a long type question. That's why it is very important for your examination point of view as well as for understanding the concept of the marketing. New product development, this is very clear with the name. जैसे लाइफ के हर स्टेज में हम लोग को डेवलपमेंट की जरूरत होती है. अगर लाइफ के हर स्टेज पे अगर डेवलपमेंट अपने आप को अगर हम डेवलप नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो हमको सक्सेस नहीं मिलती है, फेल्योर मिलता है. इन अ सेम वे at the different stage of the product life cycle, the new kind of development is required with the product. Like maybe some improvement in the product, maybe some modification in the product, maybe there are some new features adds with existing product, or maybe company is planning to introduce a new product. New product means innovative, first time in the market. It is also considered as a new product. Then if I'm talking about the new product development is not only for the new product, because new product may be एकदम first time जो market में introduce हो रहा है, एकदम कोई नया innovation हुआ है, तो this is considered as a new product. But if the marketer is improve our existing product, modify our existing product and adding some features with existing product, it is also considered as a new product. New product development is a process of bringing new product to the marketplace. एक नया product introduce करना market में, products that your business has never made are sold before but have been taken to market by others. आपके द्वारा पहले बार इंट्रोड्यूस किया गया हो तब वो न्यू प्रोडक्ट कहा जाएगा, या न्यू फीचर के साथ ऐड किया गया हो, या एकदम से नया कोई प्रोडक्ट यूज इंट्रोड्यूस किया गया हो आपके द्वारा मतलब किसी भी मार्केटर के द्वारा, किसी भी कंपनी के द्वारा. इट मींस प्रोडक्ट इनोवेशन क्रिएटेड and brought to the market for the first time. It is called new product. There are two ways to obtain a new product. The first one is the acquisition. Already I told you, the acquisition refers to buying of whole company a patent. Patent is the legal word. Patent and licensing to produce some else products. कुछ नया एकदम से बनाया, उसको पेटेंट कराया, कॉपीराइट एक्ट है, कॉपीराइट उसका आपको मिल गया, तो इट इज व्हाट, इट मींस कि एकदम से कुछ नया बनाया और हमारे पास उसका पेटेंट है. अब कोई बनाएगा तो फिर हमसे पूछ कर ही बनाएगा, कोई नया आइडिया, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया प्रोसेस, तो ये भी न्यू एज ए न्यू प्रोडक्ट कंसीडर होता है. और दूसरी बात कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिफर्स टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स एज वेल एज प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स, product modification and new brand development from the firm's own research and development. This is all about the new product development strategy. There are two ways to obtain new products. The first one is the acquisition. Second one is it may be new product development refers to the original product, or maybe product improvement, or maybe product modification. Let's see. Now start the process of new product development. वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा. There are 8 stages for the new product development. The first one is the idea generation. Second one is idea screening. Third one is concept development and testing. Fourth one is marketing strategy development. And fifth one is business analysis. Sixth one is product development.
seventh one is market testing, and eighth one is commercialization. There are 8 stages. The first stage is idea generation. हर स्टेज में एक सवाल है, उस सवाल अगर यस होगा तो आगे जाएगा मामला, नहीं तो फिर उसी स्टेज से आइडिया को ड्रॉप कर दिया जाएगा. यू कांट बिलीव दैट कि जितने भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुए हैं उसमें से 46% आइडिया तो केवल 46% ही आगे सक्सीड किए हैं. इसका मतलब कि 54% किसी ना किसी स्टेज पे ड्रॉप कर दिए गए हैं. हो सकता है कि आइडिया जनरेशन अच्छा हो, आइडिया स्क्रीनिंग में कुछ प्रोडक्ट ड्रॉप हो गए हों, कुछ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के समय ड्रॉप हो गए हों, कुछ की मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट नहीं हो पाई हो एज पर द मार्केट. तो कहने का मतलब यह है कि आप यहां देख सकते हैं कि किसी भी स्टेज पे आइडिया को ड्रॉप किया जा सकता है. देखिए आइडिया जनरेशन स्टेज, क्वेश्चन है इज आइडिया वर्थ कंसिडरिंग. इफ आइडिया इज नॉट वर्थ कंसिडरिंग इट मे बी ड्रॉप. तो आपका आइडिया वहीं ड्रॉप हो गया. अगर आइडिया अच्छा लगा, वर्थ है, तो आइडिया स्क्रीनिंग में जाते हैं. तो वहां पे फिर एक क्वेश्चन है, इज द प्रोडक्ट आइडिया कंपेटेबल विथ कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्सेज. if it is compatible, shoot to the objectives of the company, strategies of the company, and suitable for with the help of company resources, then it will be succeed for the next level. नहीं तो यहीं पर फिर से ड्रॉप हो जाएगा ये आइडिया. सेम एज विद द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इवन एट द स्टेज ऑफ मार्केट टेस्टिंग, इवन एट द स्टेज ऑफ कॉमर्शलाइजेशन, प्रोडक्ट कभी भी ड्रॉप किया जा सकता है. तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी स्टेज पे आइडिया ड्रॉप हो सकता है. तो आगे चलते हैं, एक एक स्टेज के बारे में समझेंगे, यहां पे ज्यादा स्पष्ट होगा आपको. चलिए नेक्स्ट वन इज मेजर स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ये थोड़ा स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को. आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, कॉमर्शलाइजेशन. Okay, now the first stage is idea generation. Idea generation is the systematic search for new product ideas. It means idea generation किसी भी चीज की. स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी चीज की शुरुआत जो आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में, उसकी जो शुरुआत होती है वो आपको आपके विचारों से ही प्रारंभ होता है. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन अ सेम वे it starts with idea generation. Idea generation के sources अलग अलग हो सकते हैं. The sources may be internal and sources may be external. तो internal sources के बारे में बात करते हैं. Internal sources refers to the company's own formal research and development. अपने कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने, R&D का डिपार्टमेंट ने कुछ आइडियाज दिया है, आपके स्टाफ ने या आपके यहाँ एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम से कुछ आइडियाज निकल के आए हैं. तो दिस इज आइडिया जनरेशन बाय इंटरनल रिसोर्सेज. लेकिन ये तो है ही है, लेकिन हमको लगता है कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एक्सटर्नल जो है वही तो यूज करने वाले हैं आपको प्रोडक्ट को. इंड यूजर तो वही है. कंज्यूमर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन कस्टमर, कंपटीटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, आउटसाइडर, डिजाइन फर्म्स, ये लोग भी आपको आइडियाज देते हैं. तो ये नहीं कहा जा सकता कि इंटरनल इज बेटर और एक्सटर्नल इज बेटर. बोथ आइडियाज आर इंपॉर्टेंट बट इट नीड टू बी टेस्टेड. दोनों आइडियाज इंपॉर्टेंट है, बट करना क्या है कि इन आइडिया को टेस्ट होगा, इनकी स्क्रीनिंग होगी, तब ये आइडिया आगे बढ़ेगा. अब आइडिया जनरेशन में होता क्या है कि आइडिया जनरेशन में कुछ क्रिएटिव थिंकिंग, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, लाइक एट्रीब्यूट लिस्टिंग कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे प्रोडक्ट के, उसकी लिस्टिंग करते हैं. मार्फोलॉजिकल एनालिसिस मींस कि इसके कितने डिफरेंट डायमेंशन से क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उनके वुड बी सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं. रिवर्स एजम्पशन भी हम करते हैं. रिवर्स एजम्पशन करके देखते हैं एक बार
कि क्या इसकी ये फिजिबल आइडिया है या नहीं है। न्यू कॉन्टेक्स्ट में चेक करते हैं इसको और माइंड मैपिंग करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, दीज आर सम क्रिएटिव टेक्निक फॉर द आइडिया जनरेशन। जब हम कोई एट्रीब्यूट्स की लिस्ट बनाते हैं तो हमको लगता है कि काश ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे प्रोडक्ट में होते। कि भाई जब रिमोट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो हम सोचते थे कि बार बार टीवी में उठ के चैनल बदलना है, चेंज करना है। तो कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा एट्रीब्यूट होता कि भाई बेड पे लेटे होते और चैनल चेंज हो जाता। तो एट्रीब्यूट लिस्टिंग से भी तो आइडिया जनरेशन हुआ। वैसे ही मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस है कि डिफरेंट डायमेंशन पे, अलग अलग डायमेंशन पे चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्यों ना ये आइडिया एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट आइडिया जनरेशन। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर कर दिया क्योंकि ये क्रिएटिव कुछ टेक्निक हैं जिससे हम आइडिया जनरेशन करते हैं। पूरे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद अगर आइडिया जनरेशन से ये पास हो गया मामला तो आगे हम लोग आइडिया स्क्रीनिंग में चलते हैं। आइडिया स्क्रीनिंग, आइडेंटिफाई गुड आइडियाज एंड ड्रॉप पुअर आइडियाज। Idea screening is the negative process only. From my point of view, idea generation is the negative process, जहां पे किन आइडियाज को ड्रॉप करना है ये इंपॉर्टेंट है कि भाई किस आइडियाज को आगे लेके जाना है, किस आइडियाज को ड्रॉप करना है। लेकिन जब हम किसी आइडिया को ड्रॉप करते हैं, किसी भी आइडिया को ड्रॉप करते हैं तो किस बेस पे ड्रॉप किया जाएगा। प्रश्न ये है कि किस बेस पे हम आइडिया को ड्रॉप करेंगे। तो उसके डिफरेंट बेसिस हैं कि किस किस बेसिस पे हम आइडिया को ड्रॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए यहां पे दिया हुआ है RWW। RWW मींस व्हाट, कि ये 3 प्रश्न पूछने हैं कि आइडिया से कि इज इट रियल। कभी कदार तो ऐसे आइडियाज आते हैं कि जो रियल नहीं हो सकते हैं, हो सकता है फ्यूचर में रियल हो जाए लेकिन अभी के लिए फिजिबल नहीं है। तो उसकी रियलिटी चेक करते हैं, क्या ये हो सकता है, कर सकते हैं, ठीक है, क्या हमको इसमें सफलता मिलेगी, कैन वी विन, या इज इट वर्थ डूइंग, क्या ये उपयोगी होगा या नहीं, हम ऐसे ही कर रहे हैं, बस नया है इसलिए इस पे सोच रहे हैं। क्योंकि क्या है कि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। बाद में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक स्टेज को बड़ा ही केयरफुली हम लोग को देखना पड़ता है। जैसे कुछ प्रश्न और हैं आपको बताते हैं जिसकी लिस्टिंग मैंने की थी। Will the customer in target market benefited to the product? क्या कस्टमर को इस प्रोडक्ट, जिस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, उसको बेनिफिट मिलेगा? क्या what is the size and growth forecast of the market segment? What is the current or expected competitive pressure for the product ideas? And what are the industry sales and market trend the product idea is based on? So these are some question कि जब ये प्रश्न हम पूछते हैं तो ये पता चलता है कि आगे आइडियाज को ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो इज इट रियल, कैन वी विन, और इज इट वर्थ डूइंग। आफ्टर द आइडिया स्क्रीनिंग कुछ आइडियाज आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट स्टेज पे आते हैं। नाउ बीइंग अ मार्केटर वी नीड टू डेवलप द कंसेप्ट। कंसेप्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? कंसेप्ट डेवलपमेंट में आई हैव लिस्टेड 5 things. These 5 are very important. The first one is product idea, second one is product concept, third one is category concept, fourth one is brand concept, and the last one is concept, उस सारे concept की testing। तो कैसे क्या है ये सारी चीजें, ये जानते हैं, देखेंगे स्क्रीन पे दिख रही है। Product idea is an idea for possible product that the company can see itself offering to the market। कि क्या जो भी पॉसिबल आइडियाज हैं, इज आइडिया फॉर द पॉसिबल प्रोडक्ट, जो पॉसिबल प्रोडक्ट है उनके लिए जो आइडिया है दैट द कंपनी इज गोइंग टू ऑफर। तो ये है प्रोडक्ट आइडिया। देन द प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट आइडिया तो है, कंसेप्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस है। प्रोडक्ट कंसेप्ट इज डिटेल्ड वर्जन ऑफ आइडिया स्टेटेड इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स। प्रोडक्ट कंसेप्ट जब बनाया जाएगा तो कंज्यूमर के लिए क्या एट्रीब्यूट्स है, उसको क्या वैल्यूज मिल रही हैं, क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी बातें ध्यान में रख के प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को तैयार किया जाता है। और जब ये कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है तो उसकी कैटेगरी डिफाइन की जाती है कि भाई किस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट हमारे कंपटीशन में आएगा। तो कैटेगरी कॉन्सेप्ट भी डिसाइड करते हैं। उसके बाद ब्रांड,
ब्रांड इज ऑल्सो प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। मैंने बताया था आपको कि एट द टाइम ऑफ पोजिशनिंग, if the marketer is trying to create a unique image of the product in the customer mind, then brand is the only play a very significant role. Then brand name, your tagline, these are very important one for the marketing point of view. Then brand concept is very important. For what? It's deal with positioning and perceptual mapping of the consumer. Consumer के दिमाग में कैसे ये बैठेगा ये ब्रांड, इसका कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना जरूरी है। फिर कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग है, टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विथ द टारगेट कंज्यूमर्स। जो हमारे टारगेट कंज्यूमर्स हैं, जिनके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके साथ कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग करेंगे। मैक्सिमम केस में यहाँ पे सिमुलेशन करते हैं या कोई कंट्रोल ग्रुप से हम ये टेस्टिंग करते हैं। भाई स्टैंडर्ड भी हो सकता है, रियल मार्केट में जाके कर सकते हैं, लेकिन आइडियाज लीक होने के चांसेस होते हैं। तो लीक होने के चांसेस होते हैं, लीक होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से concept testing refer to the new concept with group of target consumer। मे बी जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉई हैं उनके साथ हम टेस्टिंग कर लें, उनके साथ हम टेस्टिंग कर लें, जो बीइंग वुड बी कंज्यूमर वो भी हो सकते हैं। तो उससे हमको पता चलेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना वर्दी है, कितना वर्थ है कॉन्सेप्ट का। इसको टेस्टिंग करने के बाद कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में क्या क्या चीजें करते हैं टेस्ट, वो है कम्युनिकेबिलिटी, क्या कम्युनिकेट हो पाएगा, क्या कस्टमर बिलीव कर पाएगा, उनके नीड पे लेवल पे एनालिसिस करते हैं, टेस्ट करते हैं, गैप पे लेवल पे टेस्ट करते हैं, परसीव्ड वैल्यू, वैल्यू मींस कितना उनको बेनिफिट मिलेगा, जितना पैसा दे रहे हैं उसके बदले में क्या उनको मिलने वाला है, उनका परचेज का इंटेंशन क्या होगा, क्या टारगेट्स, यूजर टारगेट्स हमारे कौन से हैं, परचेज वो प्रोडक्ट किस ओकेजन पे परचेज किया जाएगा और उसके परचेजिंग की वुड बी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में होती है। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद हम लोग आते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में मैंने बहुत कई लेक्चर्स में बताया है आपको कि यहाँ पे आपके 4 P's, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये सारे जो 4 P's हैं, इसी को लेके कि प्रोडक्ट के क्या क्वालिटी होंगे, क्या फीचर्स होंगे, प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइसिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा क्या होगा, उसको कैसे मार्केट में हमारा फ्लो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कैसे फ्लो होगा, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्टेटमेंट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट मार्केट, वैल्यू प्रोपोजिशन, सेल्स एंड प्रॉफिट गोल्स। और ये सारी चीजें रिलेटेड है आपके 4 P से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन चारों चीजों से चीजें मिलकर बनती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिजनेस एनालिसिस। भाई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए क्या प्रोडक्ट होगा, क्या प्राइस होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे प्रमोशन करेंगे, ये सारी बातें होंगी। उसके बाद बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस इज ऑलवेज रिव्यू ऑफ सेल्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शंस to find out whether they satisfy the company's objective, whether they satisfied company's objective or not। ये है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में अभी कंज्यूमर के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल कंपनी के बारे में सोचते हैं कि क्या कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पा रहा है, क्या जो प्रॉफिट का प्रोजेक्शन है वो मिल पा रहा है, तो कैसे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई किया जाए। नाउ इन सारी चीजों के बाद अगर सब कुछ सही है, सब सारे स्टेजेस क्रॉस हो गए हैं, तो हम लोग नाउ वी आर एट प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स creation and testing one or more physical version by the R&D or engineering departments। यहाँ पे प्रोडक्ट फिजिकल शेप में आ रहा है। आपको बताएं कि इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इफ हम टॉकिंग अबाउट द कार में क्या होता है, हमेशा कंसेप्ट प्रोडक्ट सबसे पहले बनाया जाता है, उसके बाद फिर रियल प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है टेस्टिंग के बाद। और रियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपके R&D, आपके इंजीनियर्स, ये लोग रियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं और यहाँ पे कंपनी का पैसा लगना शुरू होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेवल हाई हो जाता है क्योंकि आपके रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, आपके रॉ मटेरियल इन्वॉल्व हैं, मशीनरी इन्वॉल्व है, मैन इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ, अगर सही हुआ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तब तो टेस्ट मार्केटिंग के लिए जाएंगे, नहीं हुआ
तो फिर से हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। टेस्ट मार्केटिंग, अब प्रोडक्ट बन चुका है, अब रियल मार्केट में टेस्ट करें, कंट्रोल ग्रुप में टेस्ट करें, स्टैंडर्ड ग्रुप में टेस्ट करें, it's up to the marketer, it's depend upon the product, it's depend upon the company. Okay, then test marketing is the stage at which the product and marketing programs are introduced into more realistic marketing settings. ज्यादा रियलिस्टिक मार्केटिंग सेटिंग्स में इसको यूज करते हैं, इसके पहले सब सिमुलेशन में मैक्सिमम हम करते थे. नाउ प्रोवाइड्स द मार्केटर्स विद एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग द प्रोडक्ट एंड इंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम बिफोर फुल इंट्रोडक्शन. टेस्ट करेंगे, जब अच्छा रहेगा तब उसको हम मार्केट में लॉन्च करते हैं. तो लॉन्च करने का मतलब क्या है, उसके कॉमर्शलाइजेशन हम करते हैं. लास्ट स्टेज इज द कॉमर्शलाइजेशन. कॉमर्शलाइजेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. कब लॉन्च करना है, कहां लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, किस लेवल पे लॉन्च करना है, कि भाई कौन से पोटेंशियल मार्केट है जहां पहले लॉन्च करना है, या सारे. इट्स डिपेंड अपॉन योर सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन के हिसाब से आपकी टारगेटिंग होगी कि कहां पे आप टारगेट कर रहे हैं, या सारे सेगमेंट में एक साथ टारगेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है या सेगमेंट स्पेशलाइजेशन है. इट्स अप टू द मार्केटर. इट्स अप टू द मार्केटर कि एक ही प्रोडक्ट सब मार्केट में लॉन्च किया कर दिया जाए, या एक ये प्रोडक्ट किसी स्पेशल सेगमेंट के लिए बना है तो स्पेशल मार्केट में लॉन्च किया जाए. तो इट्स अप टू द मार्केटर. इट्स डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट and is depend upon the consumer also. Okay, and this one is the commercialization stage. So now the new product development is completed. There are 8 stages. So lengthy video lecture, but it is worth. It have worth and it have meaning, because without understanding of the new product development, you are not able to understand the basic concept of the marketing. I hope आपको सारी बातें समझ में आई होंगी. Thank you so much. धन्यवाद.